Hello, hello friends. Sorry for the inconvenience little bit because of some technical issues. We were unable to start at exactly 12:30. So now coming on to our today's talk, that is regarding that what is the importance of diabetes in current scenario, or how the COVID-19 is going to affect the diabetes, or what are the complications, what are the other factors which must be considered while taking into care the current scenario or current pandemic. As you know, coronavirus has created havoc all over the world. So most of you are well aware now regarding the situation. So I will be talking in brief regarding the that what it is all, what is this coronavirus, because there are number of queries the people pose that it is similar to cold virus, it is similar to the normal flu. So in crisp, I will be talking all this. So first thing I would like to highlight that coronavirus typically causes the normal coronavirus family, common cold symptoms, but the two beta coronaviruses, that is SARS-CoV-1 and MERS, Middle East Respiratory Syndrome CoV, can cause severe pneumonia, respiratory failure, and death. As you know, the current pandemic started in December 2019. So, infection with the novel beta coronavirus, subsequently named SARS-CoV-2, which is responsible for causing the current disease, was reported in people who had exposed to seafood in Wuhan, China, where the live animals were sold. Since then, there has been a rapid spread of virus leading to the global pandemic of COVID-19. So we will be discussing its management in diabetes, what precautions are to be taken, and what in general also for the general public that how it can present, because nowadays we are even getting the cases who are asymptomatic. So what are the strategies? What is this coronavirus? So it is an RNA virus and it has four genera: alpha coronaviruses and beta. They are known to infect humans, that is alpha as well as beta, and SARS-CoV-2 is related to as SARS-CoV-1, the virus that caused SARS. If you remember, almost a decade back, there was a hue and cry regarding SARS. So, similar to SARS-CoV-1, the SARS-CoV-2 enters the human cells through the ACE2 receptors. Why I am discussing here ACE2 receptors? Because many people are taking the drugs like ACE inhibitor. So number of times people have, even one of my patients have questioned that should they be continue taking drugs or should they stop taking ACE inhibitors. So we will be discussing all this in the next coming slides. So it is enters through the ACE2 receptors, and it is an RNA dependent RNA polymerase and protease, which are the targets of drugs under investigation. Why I am mentioning these terms? This may be difficult to understand for layman, because these are the focus of drugs these days, that where we should develop the drugs so that we can control the spread of the disease. So next is transmission. This is very important, that how the virus gets transmitted. So it is primarily spread from person to person through respiratory droplets, which are typically released when an infected person coughs. Why we are focusing that we should cover the mask? What is the importance of mask? Because person releases the droplets when the person coughs or even sneezes. Because droplets usually fall within few meters, the likelihood of transmission is decreased if the people remain at least 2 meters apart. So now you can see everything, the every guideline which has been mentioned has a importance here. Why we are focusing on 1 meter, 2 meter or feet concepts? Because it is they can fall, the droplets released even from a carrier or infected within few meters. So likelihood of transmission is decreased if people are 2 millimeter apart. So this is very important. Transmission is thought not to normally occur if the people are 2 meters apart. Transmission is thought not to normally occur even through the inhalation of aerosols. Or it may be the procedures like intubation or use of nebulization, and it may linger in the aerosols for more than 3 hours. Even SARS-CoV-2 RNA has been detected in blood and stool. So very important. Another important point people often ask
that how it can be the other routes of transmission, fecal-oral route. So see, it has been detected in the fecal route even after 4 to 5 weeks. So this is very important. So now next thing is, it may persist on cardboard, plastic, stainless steel for days. There is a specific data or slide that for how much time the virus can persist over the various, whether it can persist on cardboard, whether it can persist on stainless steel. So that is why there have been number of videos circulated over Facebook, social media, that how you should protect yourself, how you should avoid touching these things when you are in public. Better to avoid going to public places even when you are pressing the lift buttons. So these are very important things. So now next thing is the major challenge to contain the spread of is the pre-symptomatic people. As I told you that almost 70 to 80% of people are asymptomatic. So recent reports suggest that people may be infectious 1 to 3 days before the symptoms onset, and that up to 40 to 50% of the cases may be attributable to the transmission from asymptomatic or pre-symptomatic people. So this is the most important thing, that we don't know who is the carrier in the population, and 40 to 50% of the cases are caused by them. The data I am sharing is from the New England Journal of Medicine, that it is not from any other, it is one of the most reputed journals. So just before or soon after the symptoms onset, patients have high nasopharyngeal virus level. Why nasopharyngeal samples are taken? Because level is highest there. And next thing, the patient is that those nasopharyngeal viruses fall over the course of approximately 1 week. Their level decreases, and patient with severe disease may shed the virus for longer period, although the duration of infectious viral shedding is unclear. As I told you that it can be shed for 4 weeks, 6 weeks. Even we have cases have been reported that virus has been shed till 6 weeks also. This is very important. So what are the general clinical manifestations which should be taken into consider? So median incubation period from exposure to symptom onset is approximately 4 to 5 days, and 97% of the patients who are symptomatic will have symptoms within 11 to 12 days after infection. Symptoms include fever, cough, sore throat, malaise and myalgias. I have seen that number of people are posting that what should be diabetes. I will come to that, because first you should be aware that what is it, what is the coronavirus and what is the COVID-19, what are the symptoms which people may present with. Then we will come on to the management in diabetes, because if you don't know that how it will present, there is you won't be able to manage the things. I will be coming to that in 5-10 minutes. So what we have seen, fever, cough, sore throat, myalgias, even it has been seen that few patients present with nausea, vomiting, diarrhea, anosmia, that loss of sensation of smell. Ageusia has been reported, and in some series of patients, dyspnea, that is shortness of breath, can occur. And what are the risk factors? So now we are coming on to our main topic, that what are the risk factors? The most important risk factor, age above the 65 years of age. Cardiovascular disease, patients who are having cardiac diseases, that it may be in the form of hypertension, any coronary artery disease, chronic lung diseases, patients who are smoker, having COPD, having bronchial asthma, patients with hypertension, they are having blood pressure. Now next thing, obesity, diabetes. Diabetic patients are at almost 4 times risk. So it is unclear whether the other conditions like kidney disease, immunosuppression, cancer, uncontrolled, even HIV can confer an increased risk or complication. But the diseases I mentioned are definitely at risk. This is the data from all trials. We may come across the further information in the coming days. We never know how the things change. But these conditions may be associated with worse outcomes after the infection with other respiratory pathogens, as we know from our old knowledge. Laboratory findings may include lymphopenia, lymphocytes are decreased, elevated levels of D dimer, LDH, C-reactive protein is increased, ferritin level is increased at the time of presentation. Prolactin level is typically normal. Many of you may be not aware of what is procalcitonin. So it is also a biomarker for infection.
So finding associated with poor outcomes increased WBC count with lymphopenia and prolonged prothrombin time, elevated levels of liver enzymes, number of other. I think these are more for the diagnostic purposes. Now next, our current topic for today is, I think now most of us are aware what is the COVID-19, what is the family of coronaviruses which are causing. Even the many people who often ask the question that it is a normal virus. Number of messages have been circulated on social media, on Facebook, on WhatsApp, on Instagram, that take this, it is a normal common cold virus, it will cause nothing. So I just want to tell, although it belongs to same family, but there are different things for that what we have to do for that. So now specifically talking about diabetes and COVID-19, what we will discuss is that, are the people with diabetes more likely to get COVID-19? Are the people with diabetes have higher chance of developing the serious complications? Is there any need to worry about diabetic ketoacidosis? Is it different from seasonal flu? What are the symptoms, warning signs a patient of diabetic should watch out? And what to do if they develop it? What are the emergency warning signs that you have to immediately go to hospital? And is there any difference between type 1 and type 2 diabetes developing COVID? And what should be done to prevent the spread of COVID-19? And what will be the impact on other things? So now starting the first question is that, are the people with diabetes more likely to develop? So what is seen in trials? See, all the data I am speaking is that it is about data which we have gathered from diabetes. It is not the data or specific guidelines. Data is evolving day by day. So there is not enough data currently to show that whether the people with diabetes are more likely to get COVID-19. Since normal population is also listening, so I would also like to discuss the things in vernacular language also. So what I was saying that, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जितना भी हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल है, उसमें ये निकल कर आया है कि ये ज़्यादा रिस्क नहीं है कि डायबिटिक लोगों को ज़्यादा हो जाएगा कोरोना वायरस, अगर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं. सो प्रॉब्लम विद डायबिटीज इज मोर ऑफ ए वर्स आउटकम. मतलब जो रिस्क है हमें डायबिटीज पेशेंट्स में ये है कि अगर उन्हें हो जाए तो रिस्क ज़्यादा है, ये नहीं है कि वो ज़्यादा रिस्क पे हैं उन्हें होने के. सो दिस इज द डिफरेंस, टू आर डिफरेंट थिंग्स, because they don't have a greater chance of contracting the virus. In China, where most cases occurred, or even in USA now, people with diabetes have a much higher risk of serious complications and death rate than people without diabetes. So this is the point. If you develop and if you are a diabetic, then you have a worst outcome and more chances that you will lead up into the complications. And generally what we believe that more health condition someone has, let it may be diabetes, let it may be heart disease, higher their chance of getting the serious complications from COVID-19. While the death toll is likely to further rise as the virus is spreading, we expect the death rate, the number of people who die from virus as a percentage of normal population who develop the disease. So often people ask how you calculate the death rate. It is basically the number of people who have died. जो लोग मर गए हैं वायरस की वजह से, तो जिन लोगों को हुआ है, सपोज अगर 100 लोगों को हुआ है, 2 लोग मर गए हैं, तो 2% डेथ रेट हो गया. बट वी आर थिंकिंग दैट इन फ्यूचर with the development of better medicines or number of trials are going, we will be able to contain it. So now our next second question, that people with diabetes experiencing higher chance of serious complication. So answer to this is yes. मतलब जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें तो डेफिनेटली हायर रिस्क है ही है कि कोविड-19 की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी. इन जनरल पीपल विद डायबिटीज, उन्हें सिम्टम्स भी ज़्यादा वर्स्ट आएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन. सो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इधर ये हैं कि जिन्हें डायबिटीज़ है ये नहीं है कि उन्हें ज़्यादा रिस्क है वायरस हो जाएगा, बट उन्हें ये ज़्यादा रिस्क है कि अगर उन्हें हो जाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आएंगे, उनके सिम्टम्स ज़्यादा स्वेयर होंगे. So your risk of getting very sick from COVID-19 is likely to be lower if your diabetes is well managed.
नाउ आई हैव सीन बहुत लोग पूछते हैं अगर उनकी शुगर कंट्रोल है फिर भी रिस्क है। सो अगेन ये देखने में आया है कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है और वो कंट्रोल्ड है तो वो भी रिस्क कम हो जाता है, नॉट एज नॉर्मल पॉपुलेशन बट लेस। रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ, उसमें क्या देखने में आया कि अगर आपको सपोज करो कोविड-19 हो गया, आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव है और अगर आपकी शुगर लेवल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन बिलो 200 रहती है, उसे कंट्रोल किया जाता है अच्छे से, जो रिस्क है वो 4 गुना कम हो जाता है एज कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जिन्हें के डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड है। एंड अनदर थिंग विच आई कम टू क्रॉस फ्रॉम द सेम आर्टिकल दैट सपोज अगर कोई पेशेंट है उससे कोरोना वायरस हो गया है बट वो पहले से डायबिटिक नहीं है, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो देर इज a 7 times increased risk of severe complications in such patients. So this is another very important thing which is coming up. So when people with diabetes do not manage their diabetes well and experience fluctuating sugars, they are generally at increased risk of having complications. The same thing which I told you. So having heart disease or other complications in addition to diabetes would worsen the further chance. सपोज करो अगर आपको डायबिटीज़ भी है, अगर डायबिटीज़ के साथ आपको हार्ट की बीमारी है, अगर हार्ट की बीमारी के साथ आपको कुछ सपोज करो कि किडनी की डिजीज़ है, जहाँ कुछ आपको और कॉम्प्लिकेशंस, आप सिगरेट पी रहे हो, आपको अस्थमा है, तो आपके जो चांसेस हैं ज़्यादा बीमार होने के, ज़्यादा मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ एन इन्फेक्शन इज़ कम्प्रोमाइज। जो बॉडी की एबिलिटी है कि हम किस तरह उससे लड़ना, हमारी इम्यूनिटी, बिकॉज जो इट इज़ ऑल द गेम ऑफ इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी है, जो हम कहते हैं कि 80% लोग आर एसिम्टोमेटिक, इट इज़ द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी एंड द कंसेप्ट ऑफ लॉकडाउन और टोटल कर्फ्यू इज टू स्टॉप द स्प्रेड फ्रॉम पीपल विद हायर इम्यूनिटी टू लोअर इम्यूनिटी, बिकॉज अगर लोअर इम्यूनिटी में होगा तो देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। So now next point is regarding diabetic ketoacidosis. I think this is more important for doctors who are listening, that we have seen that people with diabetes can even present with diabetic ketoacidosis. So ये बहुत important है कि when people with viral infection, it may be any viral infection, people with diabetes they face an increased risk of developing diabetic ketoacidosis. So it makes a very challenging for the clinicians who are managing how to titrate the fluid intake, electrolyte levels. Already few patients are in acute respiratory distress syndrome, which is, or they may be into sepsis. So both things are complicating each other. So it is very important to monitor these things. And the next thing, if your blood sugar, this is for patients, अगर आपका blood sugar level 250 से ऊपर आ रहा है लगातार, अपने यूरिन में या ब्लड में कीटोन्स चेक करवाओ, because it may be a sign of impending diabetic ketoacidosis and you may land up into severe condition, because diabetic ketoacidosis itself यूरिन में जो अगर कीटोन्स आ जाते हैं, जब ब्लड में आ जाते हैं, तो ये अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी है। कोविड-19 तो है ही है, और अगर दोनों बहन भाई मिल जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उसे मैनेज करना। सो नाउ नेक्स्ट थिंग ऑफन पीपल आस्क is COVID-19 different from seasonal flu? So this is very important question. So COVID-19 is proving to be more serious illness. ये जो COVID-19 है बहुत ही अलग है, सीजनल फ्लू की तरह नहीं है। सीजनल फ्लू तो आता है, जैसे हमें खांसी जुकाम कुछ लगा घरों में, नॉर्मली 2-4 दिन में लोग कहते हैं जी वायरल अपने आप ठीक हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस टू अवॉइड इन्फेक्शन that have been reported and are more important when dealing with this virus, मतलब जो नॉर्मल उससे रोकने में, नॉर्मल फ्लू को रोकने में यूज़ करते हैं कि अवॉइड कंटैक्ट करो, मुंह को अपने कवर करो, इसमें अब मुंह कवर की जगह आ गया मास्क डालो, लोगों से दूरी बनाकर रखो एटलीस्ट सम मीटर, सो दैट कि अगर वायरल, अगर वो कैरियर भी हैं तो वायरस के जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके ऊपर ना गिरे। सो सेफ्टी प्रिकॉशंस आर सेम एज फॉर फ्लू बट मोर स्ट्रिंजेंट, ज़्यादा करना है। हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर स्पेसिफिक वेज टू हैंड हाइजीन, 6 स्टेप्स। यू कैन गूगल दैट, यू कैन यूट्यूब पे आप सब वो देख सकते हो कि जो हैंड हाइजीन है वो किस तरह करना। वाई 20 सेकेंड? बिकॉज अगर हम वो
6 स्टेप फॉलो करेंगे हैंड हाइजीन के, तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर दोज स्टेप्स, हाउ यू हैव टू क्लीन योर हैंड, ताकि हमारे हाथ के सभी एरियाज वॉश हो जाएं. cover your nose with, see you can see me how I am covering the nose with elbow. So this is very important, like this or touch with this. if you अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर, अगर बहुत ही ज़रूरी है किसी चीज़ को टच करना, you can open the doors with this, you can press the lift button with this. So we encourage the people with diabetes to follow these guidelines strictly. So next thing is, what are the symptoms or what are the warning signs? So this is very important for patient. Fever, dry cough, shortness of breath. Although it can be a wet cough also, but usually it is a dry cough. So if you feel like developing these symptoms, call your doctor immediately. ब्लड शुगर लेवल, अगर आप अपने डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हो, ब्लड शुगर चेक करके रखो. यूरिन फॉर कीटोन्स, जो नॉर्मल लोग सुन रहे हैं, यूरिन फॉर कीटोन्स अपने चेक करो. पानी काफ़ी पीते रहो. कीप ट्रैक ऑफ योर फ्लूइड कंजप्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बी क्लियर ऑन योर सिम्टम्स, कुछ भी हाइड मत करो पेशेंट से, बिकॉज सपोज करो आपकी तो इम्यूनिटी है, अगर घर में आपके दादी दादा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, और अगर वो 65 से ऊपर हैं या अबव 60 हैं, तो आप अपने सिम्टम्स हाइड करके उन्हें रिस्क बढ़ा रहे हो. सो डोंट डू दैट. दिस इज द वन ऑफ द ब्लंडर मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग. जैसे हमने पीछे देखा, लोग पीपल आर रनिंग अवे, सिम्टम्स ही लोग अपने हाइड कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज टोटली इरेशनल. इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग, अगर आर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स, वो इतना कुछ कर रहे हैं, व्हाई टू हाइड द सिम्टम्स? भाई सिम्टम्स मत हाइड करो. कम आउट एंड टेल द डॉक्टर और विजिट योर नियरेस्ट सेंटर. गवर्नमेंट ने ऐप आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की है, उससे लॉन्च करो. इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन ट्रैकिंग. इवन माइक्रोसॉफ्ट वाले, इवन US, everyone has appreciated the steps of Indian government. So this is very important. Don't take it lightly. Don't say कि मेरी इम्यूनिटी अप है यार, मुझे क्या होगा. भाई आपकी इम्यूनिटी अप है, आपको कुछ नहीं होगा. घर में आपके बड़े तो हैं, उन्हें हो सकता है. कोई छोटा बच्चा है, एज यू कैन सी फ्रॉम न्यूज़, सारे सुन रहे हैं कि हर तरह के लोग मर रहे हैं, चाहे वो 40 साल का, 35 साल का, 30 years, इवन रिसेंटली वेरी इन्फेंट डाइड इन PGI. So be clear on your symptom, don't hide and ask your queries on phone. पहले अपने डॉक्टर के साथ फ़ोन पे डिस्कस करो, टेलीमेडिसिन के थ्रू. और अगर वो कहता कि आपको आने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली गिव अ विजिट. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट आर द इमरजेंसी वार्निंग साइंस. इमरजेंसी वार्निंग साइंस क्या है? सो सपोज करो पेशेंट है, उसको व्हाट आर द इमरजेंसी साइन? इमरजेंसी वार्निंग साइंस आर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल आएगी. परसिस्टेंट प्रेशर इन द चेस्ट, पेशेंट कहेगा छाती में यार बाहर पड़ रहा है, प्रेशर है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू कंफ्यूजन, इनएबिलिटी टू अराउज, कंफ्यूजनल स्टेट, स्पेशली इन एल्डरली, दे आर अनएबल टू कंसंट्रेट, अबलियां मार रहे हैं. ब्लू कलर ऑफ लिप्स, टंग, फेस, मे बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन की कमी आ जाए, तो ये कम हो सकता है. सो दीज आर दी वार्निंग साइंस. ऑलवेज रिमेंबर 3 वार्निंग साइंस. रंग नीला पड़ जाए, हाथ पैर ठंडे हो जाए, छाती में दर्द है, भारीपन है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है. सो अनदर थिंग, पीपल आस्क कि टाइप 1 या टाइप 2 में कोई फ़र्क है? अगर हम टाइप 1 पेशेंट हैं या हम टाइप 2 पेशेंट्स हैं, उन दोनों में कोई रिस्क है? सो इन जनरल अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में. वी डोंट नो ऑफ एनी रीजन टू थिंक दैट कोविड in risk between type 1 and type 2. More important is that people with either type of diabetes vary in their age, complication and how they will manage. So इसके बारे में अभी कोई भी डाटा क्लियर कट नहीं है, बट हमें ये पता है कि अगर डायबिटीज है तो दे आर एट इंक्रीज्ड रिस्क. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे होम, स्टे सेफ. एंड पीपल हु ऑलरेडी हैव डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ऑलरेडी उन्हें कॉम्प्लिकेशंस है, बीपी है, किडनी की डिजीज है, हार्ट की डिजीज है, कोई न्यूरोपैथी है, कोई आंखों की प्रॉब्लम है, उनका जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. और वर्स्ट आउटकम, दे विल हैव वर्स्ट आउटकम इफ दे कंट्रैक्ट द वायरस देन द अदरवाइज हेल्थी पीपल. सो नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट शुड आई डू टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. हम और क्या कर सकते हैं कि हमें घर में वायरस को स्प्रेड से रोकना है. सो फॉर द पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, जिन्हें हेल्थ कंडीशंस हैं घर में, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे हार्ट है, कुछ भी है, हेल्थी फैमिली मेंबर शुड कंडक्ट देमसेल्फ
एज दे आर सिग्निफिकेंट रिस्क टू देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थी मेंबर्स हैं वो ये सोच कर चलें कि हम जो पॉपुलेशन जो जिसे घर में कोई बीमारी है उसके लिए हम रिस्क है। सो दे शुड बी श्योर टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर फीडिंग एंड केयरिंग फॉर देम। उन्हें खाना खाने से पहले भी हाथ धो के दो। अगर कोई बच्चा उसे फीड करने से भी हाइजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन। If possible, protected space should be made available for vulnerable household members and all utensils should be cleaned. वो कह रहे हैं जैसे इजराइल ने किया था कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन अबव 60 उसे अलग कर दिया। ऐसा अगर पॉसिबल है, ऑल्दो इट इज़ नॉट फिजिबल इन इंडियन सिनेरियो, बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में ये, बट अगर कर सकते हो तो जो घर के बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा सेपरेट स्पेस दे दो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर घर में कोई सिक हो गया है, बी श्योर टू गिव देम देयर ओन रूम। अगर पड़ ही गया कोई बीमार, उसे अलग रूम दे दो। एंड वन पर्सन शुड टेक केयर। ये नहीं कि सारे जा रहे मिलने। थोड़ा सा अपना प्यार कम करो इस टाइम पर, क्योंकि ये आप उनके भले के लिए कर रहे हो। सो हैव ओनली वन फैमिली मेंबर केयर फॉर देम। कंसिडर प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रोटेक्शन और मोर इंटेंसिव केयर फॉर हाउस होल्ड अबव 65। ये 65 वर्ड याद कर लो, 65 से ऊपर रिस्क बड़ा ही बड़ा है। इवन जो कह रहे हैं इटली में इतने लोग मर गए हैं, वाई? बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज मच अबव द एल्डरली पॉपुलेशन है। इंडिया में अभी एल्डरली पॉपुलेशन नहीं है। वी ऑल आर अमंग दी मिडल एज और इन दी अपर, मीन्स वी आर नॉट इन दी एल्डरली ग्रुप। सो इटली में एल्डरली ग्रुप बहुत ज़्यादा, फ्रांस में बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। सो और एक चीज़ पूछते हैं लोग के इससे क्या हमें कोई दवाई वगैरह कुछ चेंज करनी चाहिए। मैंने देखा नंबर ऑफ पीपल हैव पुट अप द क्वेश्चंस दैट वेदर दे शुड स्टॉप टेकिंग एनी मेडिसिन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कुछ भी दवाई, कुछ भी, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी डायबिटीज़ की मेडिसिन है आपकी, ये चाहे आपकी कोई हार्ट की दवाई है, चाहे आपकी कोई शुगर की दवाई है, चाहे कोई आप ब्लड प्रेशर की ले लो, उससे बिल्कुल भी चेंज मत करो। डोंट कम इन दी र्यूमर्स, लोगों की अफवाहों में मत आओ। बहुत र्यूमर्स लोग फैला रहे हैं। अब कल एक स्टडी आई है फ्रांस से कि शायद जो निकोटीन है वो उसका कोई प्रोटेक्टिव रोल होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट पीनी शुरू कर दो। लोग कह रहे हैं जी हाथ साफ कर रहे हैं अल्कोहल से, शायद शराब पीने से वायरस अंदर भी मर जाएगा। भाई ये सब डोंट डू सच ब्लंडर्स, ये सब ब्लंडर मिस्टेक्स हैं। ऐसी डोंट, इसे फैलाओ भी मत। गवर्नमेंट तो स्टेप्स ले रही है, बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, डोंट डू ऑल दिस। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, चाहे वो शराब है, चाहे वो कुछ भी है, सिगरेट है, क्योंकि इससे आप रिस्क बढ़ा रहे हो। आप तो माना ठीक है, लेकिन आप अपनी फैमिली को इसके लिए खतरे में डाल रहे हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू वॉच। और कोई भी दवाई मत बंद करो। सिम्टम्स मैंने बता दिए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चंस विच पीपल हैव पोस्टेड। सो आई विल बी ट्राइंग टू टेक अप मोस्ट ऑफ देम। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट डाइट टू रिकमेंड इमीडिएटली। सो डाइट है जो आप नॉर्मल जैसे डायबिटिक पेशेंट डाइट लेते हैं वो डाइट आप लेते रहो। टेक हेल्दी डाइट, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैंने देखा जी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चोरी छिपे दुकानें खुलाकर, इतनी उन्हें खाने पीने की तलब हो रही है कि कोई कुलचे ला रहा है, वो कह येस्टरडे समवन वाज टेलिंग यार उधर कुलचे की दुकान खुल रही है, उधर से मंगवा लिए, स्प्रिंग रोल खाने हैं पिज़्ज़ा खाना है। सो एक दो महीने रुक नहीं सकते। वैसे भी हम हमेशा कहते रहते हैं कभी हम खाना नहीं चाहते, वी वांट टू गो ऑफ द डाइट, हम 2 महीने बिना फास्ट फूड के रहना चाहते हैं। नाउ इज द टाइम, गो विदाउट दोज थिंग्स 1 महीने के लिए। सो अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रिकॉशंस फॉर एल्डरली डायबिटिक। सो एल्डरली डायबिटीज़ के लिए भी प्रिकॉशन सेम है कि बाहर मत जाएं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अवॉइड कंटेक्ट विद पीपल। अपने जो घर में दूसरे लोग हैं जो यंग एज ग्रुप में, उन्हें बोलो अगर आपको कुछ चाहिए, उन्हें बोलो कि क्या करना चाहिए हमें। सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू अवॉइड वेट गेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर फास्टिंग। सो वेट गेन के लिए तो सी सर देर आर 2 मेन थिंग्स, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी MNT के हमें डाइट का कंट्रोल रखना, एक्सरसाइज करनी है, जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेनी,
हाँ, एक चीज़ मैं इधर ऐड करनी चाहूँगा, देयर इज़ मेरी एक वीडियो है ऑन माय पेज, ऑन इवन ऑन माय फेसबुक, अगर कुछ लोग देखना चाहें देख सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि यार अब एक्सरसाइज कैसे करें, बाहर तो जा नहीं सकते। वो वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट, यू कैन सी इन दैट कि व्हाट एक्सरसाइजेज डायबिटिक और hypertensive patient can take it. So next question is diabetic patient during lockdown. I told you, I think this is the same question that diabetic patient को क्या करना चाहिए लॉकडाउन में। दवाइयों की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट हैज़ ओपनड, दवाइयों की शॉप्स खोल दी हैं। सपोज करो अगर कोई आपको इन केस दवाई नहीं मिल रही, या आपको कोई ब्रांड डॉक्टर ने लिख दिया, लेट इट बी एनी ABC, नहीं मिल रहा, आप डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर सकते हो। इवन माई पेशेंट्स हैव कॉल्ड, फ्यू पेशेंट्स फ्रॉम हरियाणा, हिमाचल, दे आर कॉलिंग के सर हमें अब ये दवाई इधर नहीं मिल रही, जहाँ वो उधर ख़त्म हो गई है, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है, तो उसका आपका डॉक्टर आपको अल्टरनेटिव बता देगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कोई भी डॉक्टर बनाता कि यार यही खाओ, बिकॉज सिंस इट इज़ अ क्राइसिस इन द कंट्री। So another question from Mahavir Dagur, that does diabetic patients have more chances of COVID-19? So no, they don't have more chances. ये बहुत लोगों का क्वेरी है कि ज़्यादा चांस नहीं है उन्हें नॉर्मल पॉपुलेशन से। हाँ, अगर हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस होगी, फिर कॉम्प्लिकेशंस होगी। अनदर क्वेश्चन इज डायबिटीज लीड टू हार्ट फेलियर? यस, डेफिनेटली डायबिटीज़ की वजह से रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर इंक्रीजेज। नाउ हम अब ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं डायबिटिक पेशेंट्स की जो कि रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर कम करती है। सो शुड एवरीवन बी वेयरिंग मास्क? अनदर क्वेश्चन, यस एवरीवन शुड वेयर मास्क। गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, बिकॉज मास्क से जो देखने को आया इन वेरियस स्टडीज ट्रायल दैट रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन डिक्रीजेज। चाहे वो कम रिस्क हो बट उसका बहुत रिस्क है। सपोज करो आप मास्क डाल के बाहर गए हो, आपको घर तो वापस आना है ना, तो इससे अगर कुछ वायरस की इन्फेक्शन है उसका रिस्क कम हो जाएगा। कैन डायबिटीज विद रिवर्स्ड विद मेडिकेशन? अनदर क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज नॉट अ टॉपिक बट स्टिल वी कांट रिवर्स द डायबिटीज विद मेडिकेशन। अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हो मिस्टर संदीप राणा, तो यू हैव टू डू सर्टन डाइट्स, एक्सरसाइज, लूज योर वेट। हाँ, अगर वो हो सकती है, बिकॉज डायबिटीज़ की भी कई तरह की किस्म है, हर तरह की डायबिटीज़ हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो व्हाट एक्सरसाइज? अनदर क्वेश्चन, रिकमेंड फॉर डायबिटिक। जैसे मैंने पहले बोला कि एक वीडियो है मेरी, अगर आप घर में, आप अपनी छत पर, अपनी टेरेस पर ट्रेडमिल कर, घर में नीचे ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल कर सकते हो, छत पर एक्सरसाइज कर सकते हो, पुश डाउन्स कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स यू कैन डू ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर संदीप राणा। सो आई थिंक फॉर नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष डिपार्टमेंट ने एक स्पेसिफिक स्लाइड इशू की है कि आप क्या क्या खा सकते हो। च्यवनप्राश, इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो वी शुड फॉलो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कीप आवर इम्यूनिटी बूस्ट। बिकॉज जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, ये देखने में आया कि उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क ऑफ कम्बैटिंग वायरस कम है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस शुगर लेवल एंड HbA1c? सो शुगर लेवल एंड HbA1c अगर 7 ही है तो यू कैन डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ट्राई टू लूज वेट, ट्राई टू कट डाउन कैलोरीज, कम करो। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू इफ आई एम डायबिटिक एंड गेट सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड? अगर आप डायबिटिक हो और अगर आपको कोई लग रहा कि ऐसा सिम्टम्स है, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आजकल हर बंदे को कोल्ड भी हुआ वो सोच रहा है कि यार मुझे कोविड तो नहीं हो गया। फर्स्ट थिंग इज स्टे पॉजिटिव, इतना नेगेटिव मत रहो यार। ठीक है, बीमारी तो है, वी हैव टू बी प्रिकॉशियस बट डोंट थिंक दी वर्स्ट। सिम्टम्स है, आप अपने डॉक्टर जिससे भी आपका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, यू कैन कंसल्ट हिम और हर, उससे डिस्कस करो। अगर उसे लगता है कि उसे देखने की ज़रूरत है या किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो आप उसके साथ कंटेक्ट कर सकते हो। सो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन शुगर लेवल एंड हाइपरटेंशन? डेफिनेटली बोथ आर सिनर्जेस्टिक। अगर आपको शुगर है तो आपको रिस्क ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन इंक्रीजेज। सो व्हाट डाइट टू गिव आफ्टर फास्टिंग? सर डाइट तो जैसे हम डायबिटीज़ में जो इस सिचुएशन में भी जो नॉर्मल डाइट्स हम फॉलो करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, वो तो सेम ही रहेगी। ये नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा, बट ठीक है, टेक हेल्दी, स्टॉप ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड,
घर में ही जो खा सकते हो वो खाओ, अवॉइड ईटिंग दी स्वीट्स, अपनी शुगर घर में रेगुलरली चेक करते रहो। जैसे मैंने पहले बोला, अगर वो ज़्यादा बढ़ती है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। कैन वी टेक ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स डेली विद डायबिटिक? यस, हम ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं। कुछ सॉल्ट लेवल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम, बिकॉज सर्टन फ्रूट्स एंड सर्टन ड्राई फ्रूट्स आर नोन टू कॉज के ये रिस्क बढ़ा देते हैं हमारा डायबिटीज़ का। सो हाउ टू बूस्ट इम्यून सिस्टम नेचुरली, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। च्यवनप्राश है, कुछ हल्दी वाला दूध, जो नेचुरल चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, यार ये सब चीज़ें खाओ, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आयुष ऐप पे एक स्पेसिफिक दिया हुआ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता है, ही कैन गूगल दैट। उसमें बहुत अच्छी स्लाइड है, आल्दो के पहले कोई रिकमेंड नहीं कर रहा था, बट इट इज़ रिकमेंडेड। इम्यूनिटी इज़ ऑलवेज ए कंसेप्ट। इम्यूनिटी अगर जिसकी अच्छी है, इम्यूनिटी बूस्टर इज़ वेरी गुड थिंग। सो वाई डू आई हैव टू चेक फीड माई फीड एवरी डे? सर नॉट एवरी डे, फीड एवरी डे नहीं चेक करने। इसमें क्या कि सपोज करो कोई डायबिटिक पेशेंट, उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, नम है, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि भाई अपने पैरों का खास ध्यान रखो, क्योंकि आप लोगों को न्यूरोपैथी होगी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर हो गई तो काफ़ी चांस है कि आपके जो पैरों पे जख्म हो जाएंगे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट को तब तक जख्म का पता ही नहीं लग पाता जब तक उसके जख्म बढ़ नहीं जाते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक करो फीड जिन्हें न्यूरोपैथी है। हाँ, नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट शुड ऑल्सो कीप ऑन वॉच के कोई उसे डायबिटिक फुट पे कोई डायबिटिक फुट ना डेवलप हो जाए, कोई रेडनेस हो गई टांगों पर, उंगली ना हो जाए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वर्कआउट फॉर डायबिटिक्स, ये मैंने पहले भी बताया कि मेरी एक स्लाइड है, आप वो स्लाइड देख सकते हो मेरी FB प्रोफाइल में। मेरे पेज पर भी बाय द नेम ऑफ बुधवार सुपर स्पेशलिटी सेंटर, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। आई विल ट्राई के इस पेज पे भी शेयर करूं, सो दैट पीपल कैन फॉलो दैट वीडियो में। सो कैन सम डायबिटिक मेडिकेशन एम्पलीफाई द इम्यून रिस्पॉन्स? सर ऐसा अभी कुछ नहीं है कि डायबिटिक मेडिसिन इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई कर देंगी, बिकॉज अगर ऐसा हो तो फिर तो हम नॉर्मल पॉपुलेशन में भी वो दे दें। हाँ, बट देर आर सर्टन, ये हम ज़रूर कहेंगे, जैसे पहले कह रहे थे कि कुछ BP की दवाइयों के साथ रिस्क बढ़ गया जी, एस इनहिबिटर जैसे कि लोग खाते हैं, टेलमीसार्टन, ओल्मीसार्टन, ऐसे नाम्स होते हैं। बट अभी कल पेपर पब्लिश हुआ कि वो दवाइयाँ के साथ रिस्क कम है, बट अभी हम इस क्रक्स पे नहीं आ पाते। सो बेस्ट इज कि जो आप दवाई खा रहे हो वो ही खाते रहो। डोंट डू समथिंग लाइक दैट कि नहीं यार ये सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहा है वो दवाई खानी बंद कर दे, ये हमें दोस्त ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं करना। इससे आप अपना रिस्क खुद बढ़ा रहे हो। एंड डोंट हेल्ड बाद में कि यार हमने तो बंद कर दिया। अब DPP-4 इनहिबिटर्स का कोई इशू रेज हुआ है, बट डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। DPP-4 मीन लाइक सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ऐसे सॉल्ट्स होते हैं। बट ऐसा कुछ मत करो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना, बिकॉज यू विल बी इंक्रीजिंग द रिस्क योर सेल्फ। सो व्हाट सिम्टम्स, अगेन द सेम थिंग, सिम्टम्स वही है कि हमें क्या करना है। अभी कोई अगर खांसी जुकाम बुखार है, अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ समथिंग अब नॉर्मल, सो ये सब आपको नोट रखना है भी उसके लिए क्या करना है। एक और चीज़ मैं इधर आई फॉरगॉट टू मेंशन इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़। ये मतलब सभी से मैं इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा भी यार अपने आप मत खाओ वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बिकॉज उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसके कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो हो सकती हैं। और जो गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एडवाइजरी जारी की है, दैट इज़ फॉर द पीपल, उनके लिए जैसे डॉक्टर्स या जो लोग रिस्क पे हैं, जहाँ उनके लिए जिन डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, या नर्सिस हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, अदर हॉस्पिटल स्टाफ हैं, उन्हें रिस्क है उसका। और वो उनके जो घर के कंटेक्ट्स हैं उनके लिए ऐसे मत खाओ अपने आप। दवाई अगर आप अपने आप खाओगे तो उसका जो रिस्क है वो आपका बढ़ जाएगा। So this is very very important thing. So what should be the reason where I don't have family history, not fatty nor alcoholic, plus being 100% vegetarian? There is another question कि भी उसके साथ क्या रीज़न। हम अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, अब नहीं खा रहे बट फिर भी आपको रिस्क है डायबिटीज़ होने का। सी देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर एट जेनेटिक लेवल,
आई थिंक दिस इज बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, ये एक अलग टॉपिक है। लोग पूछते हैं यार फैमिली, माँ को भी नहीं, फादर को भी नहीं, दादे को भी नहीं, दादी को भी नहीं, ना भाई बहन को, यार मुझे कहाँ से डायबिटीज़ होगी, वो भी इतनी। सो आजकल डायबिटीज हैज बिकम अ लाइफस्टाइल डिजीज। सो नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू सी, इट इज़ नॉट ओनली कि यार हम ये खा रहे वो खा रहे। अब आप देखोगे पतले पतले बंदे, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट तो अक्सर दे आर वेरी थिन, उन्हें कहाँ से डायबिटीज़ हो गई भाई। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कमिंग टू द क्रक्स, जो कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोविड-19 इज काज्ड बाय SARS-CoV-2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मैंने बता दी, कफ फीवर, मलेज, मेल्जिया, इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, एनोजमिया, लॉस ऑफ स्मेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बिकॉज ये नहीं है कि हर बंदे को आ जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप दिस। सो डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन PCR टेस्टिंग ऑफ नेजोफ्रेंजियल स्वैब। सो डायग्नोसिस के लिए PCR रिकमेंडेड। अभी पीछे काफ़ी शोर बढ़ रहा था यार किट्स अलाउ करो, बट किट्स आर नॉट रिलायबल एज वी हैव सीन। वी डोंट नो what will be the next advisory from government of India or Indian Council of Medical Research, but as far the kits are not reliable because there is बहुत डिफरेंस आया है उनके रिजल्ट्स में। और जो PCR के साथ टेस्ट करते हैं वही असली टेस्ट है। एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट इसकी डिपेंड करती है, आपको माइल्ड डिजीज़ है, मॉडरेट है, स्वेयर है। जहाँ जो मॉडरेट एंड जो स्वेयर डिजीज़ है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता फॉर ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्टिव। कोई भी अभी ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज़ नो प्रूवन थेरेपी करंटली फॉर द डिजीज़। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैंड हाइजीन कैसे फॉलो करनी है, उस इक्विपमेंट को कैसे डालना है, कैसे उतारना है। दीज आर दी थिंग्स जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसे फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना है। अगर कोई भी सिम्टम्स है तो आपको किस तरह करना है। सो दीज आर दी थिंग्स यू हैव टू वॉच फॉर। I think this is enough. We have covered all the things for layman as well so other publish. So any further queries, अगर किसी को भी कोई किसी तरह की query है, he can put me a personal message also on my Facebook, on my page also. We will be glad to answer those questions. And at last I will stay. आप सब की घर में रहने में ही भलाई है। There is a famous quote of चाणक्य, जब दुश्मन जो कोविड हमारा दुश्मन है, अब जब अदृश्य हो जिसे हम देख नहीं सकते तो छिप जाने में ही भलाई है। आई वुड लाइक टू एंड दी डिस्कशन विद दिस दैट जब दुश्मन अदृश्य हो तो घर में छुप जाने में ही भलाई है। थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग। एनी फर्दर कमेंट्स क्वेरीज विल बी वेलकम्ड। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।